And hi, good evening, Sudipta. So let's start with our invocation. Who's going to start? Sudipta, you can lead it. Sudipta, can you hear? Sorry, give me 2 minutes, huh? Give Okay, me 2 minutes. okay, okay. Nidhi, is Himanshu with you? I'll switch off my video for 1 second. Sorry, Pasang, I'll get late. Suddenly, my office call has been started, so I'll just jump here. Yeah, no problem. So let's start with our invocation. Sudipta, you want to lead it? Everybody Okay. can, unmute themselves. So Sure, three sure. words will do. Mm. By the grace of the healing master Nalin Narula, I connect to my karma quotient at the root and the 11th ground, healing the Heal past, present, and present future and for all future time. for all And times I live with by the the awakened heart awakened heart energy. energy. मान देना हरि Rena Hari हलाग्नि, मान देना हरि Dena हलाग्नि, मान देना हरि हलाग्नि. Hari Nami. There's the golden pyramid, golden eye, all the golden energies coming to the right vertex of the body, and all the purple energies coming to the left vertex of the body, and I'm in the center of the vertex. Good to see you. Hi. Okay. So I'll give a It's certain summary parts of what which we you were had. describing. Sorry. I just missed certain part that you have described. No, no, we were just this is Joy's first session. So Latika gave an Okay. overview of what we had covered so far. Okay. Okay. So so Welcome, in the Joy. yeah. Thank you. So we had completed chapter 2's text 22 to 43 since our last session, and I'll just do a quick summary. So between text 22 and 23, and again, Narad Rishi ji is with Lord Indra right now, and he was telling Lord Indra that you are the greatest devotee of the divine, and this is Lord Indra responding to Narad ji's observation. So in text 22 to 23, Lord Indra was lamenting that, Bhagwan disregarded him by diminishing Amravati Puri, establishing his own Vaikunt within this universe. He also said that, so Indra explained that Bhagwan only accepts his worship due to the austerities of his parents and the guidance of Brihaspati, who is the Dev Guru, and not out of compassion for Indra himself. And then in text 24 and 27, he said that Bhagwan sometimes accepts worship, but instructs Indra to worship Brahma and Shiva in his absence, citing scriptural unity of Vishnu, Rudra, and Brahma, which, makes Lord Indra sad. Indra also noted that Bhagwan's residence is uncertain because sometimes he's in Vaikunt, sometimes he's in Dhruvlok, sometimes he's in Shwetadeep, making his darshan even rare for sages, what to speak of him. And then in text 28 and 29, he said that on earth, so right now when this story is taking place, Bhagwan is actually on earth with the Pandavas. So he says that on earth, Bhagwan's presence is equally unpredictable because sometimes he's in Dwarka and sometimes he's with Pandavas in Mathuras and sometimes he's just wandering in the forest of the Gokul. So Indra is lamenting that his mercy, divine's mercy, is very inaccessible to him. And then in text 30 to 36, Indra tells Narad that Brahma, Lord Brahma, is his father, is the true recipient of Bhagwan's mercy. So another devotee has been introduced now.
So Indra tells Narad that Brahma is the true recipient of Bhagwan's mercy. And then he goes on to say that, Brahma's lifespan is vast. Brahma's one day equals to 1,000 Chaturyugas. And on his one day with 14 Indras, just pass during that time. So Lord Brahma creates, maintains, and dissolves the universe, while the Mahapurush, which is the thousand-headed form of Bhagwan, resides in Brahmaloka, accepting the yagna offerings and bestowing bliss to Lord Brahma and his servitors. So then he also gave a scriptural reference where he said that Lord Brahma is non-different from Sri Krishna in his exalted status. And then after in between text 37 to 33, when Narad heard Indra's words and praises, he swiftly traveled to Brahmalok. So now Narad Muni has entered Brahmalok, and Narad Muni obviously has a spiritual body. He doesn't have this material body like us. So he has the ability to travel, and he is accepted, welcomed everywhere. So now he has entered Brahmalok, and there he witnesses continuous yagnas being performed by sages with the Mahapurusha form of the Lord manifesting and accepting the offerings with his thousands of hands and mouths and granting boons. And then afterwards he also retires to his abode where goddess Lakshmi was serving him, and Lord has enters his divine sleep. So those were the summary, and now the class is open. So let me open the participants list. So we'll start with Nidhi. You want to start? What were your observation? What do you want to highlight from these texts? जय गुरुदेव। आई अंडरस्टैंड कि इंद्रदेव को ऐसा लग रहा था कि उनको उनकी वजह से कोई उनके ऊपर मर्सी नहीं हो रही है, उनके पेरेंट्स की वजह से मर्सी हो रही है उनके ऊपर, उनके गुरु की वजह से मर्सी हो रही है। और वो मतलब भगवान कहीं भी होते हैं, एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए, मतलब वहाँ पे। और वो मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि उनसे भी ऊपर कोई है, और भी उनसे ज्यादा अच्छे भक्त हैं उनके। और मैं अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो वो मेरे आसपास ही कहीं होते, मतलब इस तरह से। तो इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा इस तरह से वो बताना चाह रहे। Okay, thank you, Nidhi. Parul, you want to add your observations? जब भगवान अमरावती को वापस लेते हैं तो इट मीन्स कि जो उनका अहंकार है, जो इंद्र का ईगो है, वो एक वो जो अमरावती डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि सिंबल ऑफ द ईगो डिसॉल्विंग, कि वो उसका ईगो डिसॉल्व कर रहे हैं। जो सिटी ऑफ इंद्र थी वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि वो पावर पावर Material है, opulence. स्टेटस है, मटेरियल ऑपुलेंस है, वहां पर मटेरियल प्राइड है वहां पर। जब भगवान उसको वापस ले लेते हैं तो इट मीन्स कि भगवान ने, हमको लग रहा होता है कि कुछ हमें लॉस हो रहा है, बट वो लॉस नहीं हो रहा होता है। एक्चुअली इट इज ए प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। Yes, exactly. द प्रोसेस हेल्प्स अ पर्सन, मतलब वो जो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पर्सन को हेल्प कर रहा होता है रिलीज टू ईगो, अटैचमेंट एंड फॉल्स आइडेंटिटी। So it is the mercy of the divine, actually. मर्सी ऑफ द डिवाइन। Yeah. टेक्स्ट 22 का है ये वाला जो पूरा वो बताया था। और जैसे भगवान ने उसके बाद अपना वैकुंठ बना लिया, और उन्होंने ये दिखाया कि मतलब सुप्रीम लॉर्ड वही है। एक वैकुंठ वो कि जो वो बनाते हैं। और जैसे कि हम लोग सुदीप्ता के साथ और आपने हमने डिस्कशन किया था कि एक वैकुंठ हम अब खुद भी क्रिएट करते हैं, जो हमारे भक्त के हार्ट में होता है। वो ईश्वर के जो प्रति जो डिवोशन है, डिवोशनल एक्टिविटी है, भक्ति, और जो एक चीज बोली जाती है काइंडनेस, उसकी वजह से द डिवाइन का ग्रेस जो मिलता है हमें,
वो हमें हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाता है। ये टेक्स्ट 22 का ही अभी है, कि अभी देखते हैं। Okay, nice. And this Vaikunt is not part, it is part of the material universe, but it is हाँ untouched by जो Lord Brahma का जो सारा जो ये wind down करते हैं material universe, this Vaikuntha and Dhruva Lok, these don't get dissolved. They are there, and although they are part of the material universe, but they are not. They are part of the spiritual Goloka, just like we have Navadeep, Vrindavan, and even our Jagannath Puri. They are in the material universe, but they are not part of the material universe. They are part of spiritual Goloka. So वैसे ये दो universes भी है. So thank you, Parul. Who wants to go next? Hi, good evening, Sarita Di. Hare Krishna. So we'll give you some time to settle, Sarita Di. Vanna Di, you want to go next? वंदना जी. ओके सरिता दी, आप शेयर करिए टेक्स्ट 22 to 44. व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हाँ, मेरे को ना टेक्स्ट दोबारा देखना पड़ेगा पासा। लेट मी जस्ट चेक, आई हैव जस्ट कम होम। ओके ओके, ठीक है. एक्चुअली वी डिड गो थ्रू द हाइलाइट्स, बट यू जॉइंड लेट, so it's fine. I will paste it on the chat, um, so that it will help to recall everyone. Let me paste it. हाँ पासंग, तुम कुछ कह रही थी, मेरे को हाँ, अभी मैं कह ऐसा रही थी कुछ कि नहीं है। आप शेयर करना चाहेंगे. नहीं डियर, नॉट टुडे। ओके ओके. Anyone else? We'll come to you, Sudipta. Let me check with others. Angishi, Munni, you want to share? Yeah, Pasang, I want to share. If Angishi is want to share, let her share. Okay, Sudipta, wait. आप ना, आपको आपके पास बाद में आते हैं. Let's हाँ give everyone a chance. Okay. Starlight, you want to share anything? Priyanshi, you want to share? हेलो. Yeah, Angishi, go ahead, please. हाँ, ये मेरा कैमरा कैसे करना है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था. एनीवेज, कैन यू गाइस हियर मी? Yes, yes, we can hear you. तो आई वाज नॉट प्रेजेंट फॉर द लास्ट मीटिंग, तो बट अभी जैसे पारुल ने बताया तो काफी सारा क्लैरिटी आ रहा है. और काफी अच्छा लग रहा है कि जैसे अमरावती किसको डिनोट कर, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Represent. ईगो को. तो वो काफी अच्छा पॉइंट था, वो समझ में आ रहा है. और मतलब ये नजर आ रहा था कि कैसे इंद्र इतना ज्यादा मतलब परेशान है. ही इज लैमेंटेटिंग ऑल द टाइम कि ही इज नॉट हैप्पी, कि मतलब भगवान की कृपा मुझ पर है ही नहीं, है ही नहीं. उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं करना चाहता हूँ लेकिन भगवान मेरे आसपास है नहीं. और हाँ. हम्म. ये लेकिन फिर अब ये देखने में अच्छा लग रहा है कि कैसे आगे आगे भगवान का क्या रूप होता जा रहा है. और अब वो ब्रह्मलोक की तरफ हम जा रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि और आगे क्या होता है. हम्म. ठीक है, thank you. Starlight, you want to go next and share anything? You can share anything. I don't know. You want to share anything about Krishna? No. Say something. Just say Hare Krishna. Hare Krishna. Good. So let's see. Joy, Joy, you want to add anything? Not today. I'll go through. Fine, fine. Sakshi, you want to add anything? Are you able to speak? If not, then you can put it on chat also, Sakshi. Sakshi Yes, is yes. in the outside. So Yeah, yeah. So that's what I'm saying. She can put it on chat also if she wants to. yeah. All right. Sudipta, you can share your thoughts now. Thank you for waiting. So Indra is a little overwhelmed that he is
he is not able to get the kripa of Lord. He is searching here and there. He is thinking that Lord is not uh, give kripa to Indra because uh, Lord is busy with Pandavas and other thing. But actually, this was not the situation. But he is overwhelmed to think about that कि उन पे कृपा ही नहीं हो रही है. So basically ये है point and अमरावती वाला जो एपिसोड है उसमें ये है कि कैसे फॉल्स ईगो हमें फॉल्स ईगो मन बुद्धि अहंकार में से फॉल्स ईगो ऐसा है जो कि हमें फोर्सफुली कोई चीज करने के लिए प्रेशर करता है या ओवर थिंकिंग. सो फॉल्स ईगो, हील द फॉल्स ईगो इज very very important. So these two things I just want to highlight. For any to move further in the spiritual life consciously, we have to work on the ego part. Very true. Thank you, Sudipta. So I'll just share my, take on these things. So I think Indra's loss of Amravati, that showed that, it shows Bhagwan's independence, that even the king of heaven cannot claim permanence in his abode. So Bhagwan is completely independent and he is above everyone. Um, and then when Indra is saying that, when he's admitting that Bhagwan is only accepting his worship due to his parents' austerities or Brihaspati's guidance and not out of compassion for Indra himself, that shows that Bhagwan is actually very, renunciate. He's not bound by your ritual worship. He will only respond to pure devotion because his parents, Diti and Kashyap, are, true devotees of the divine. So you can move Bhagwan not by ritual worship, just because you are, a demigod or you have a certain position and you do some rituals. He will respond only by pure devotion. And then when Indra says that Bhagwan is so his presence is so unpredictable कि कभी वो वैकुंठ में है, कभी ध्रुव लोक में है, कभी श्वेत द्वीप में है, कभी द्वारका मथुरा वृंदावन में है. तो ये है कि भगवान का जो नेचर है वो लीला वाला नेचर है. इट्स वेरी जॉयफुल, इट्स वेरी डायनेमिक एंड ही मूव्स फ्रीली एंड इट्स नॉट इजी टू कन्फाइन हिमसेल्फ इन वन प्लेस, right? And then when later on we he tells about, कि Lord Brahma is the true recipient of mercy, then we also get to know कि Lord Brahma का lifespan कितना बड़ा है and what is the cosmic significance of Lord Brahma. And when अभी तक हम लॉर्ड इंद्रा का देखते हैं, डेमीगॉड ये वो, बट देन व्हेन ही टॉक्स अबाउट लॉर्ड ब्रह्मा कितना डॉर्फ हो जाता है लॉर्ड इंद्रा का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा's cosmic significance. So that I thought was a point to be highlighted. And obviously जब वो नारद खुद विटनेस करते हैं कि 1000 headed महापुरुष हैं जो यज्ञ ऑफर कर रहे हैं, so that just reinforces what we have discussed in our previous, sessions. Ki ultimately, all the sacrifices, all the yajnas, all the devotion that you do reaches Bhagwan. It doesn't reach, demigod. Bhagwan is the true recipient of all the yagnas and sacrifices. So I think that was very revealing, and I really liked it. Thank you, Vasant. Yeah. So Saridadi, do you want to share now? Apart from, I can add here if Yes, please anybody do. wants to understand Brahma's position, chapter 8, Bhagavad Gita, Nalin sir has explained it very well in expanded way. You can go and check that, and later if you will study, you will able to understand more clearly. Okay, now that we have summarized, let's see if anybody has any questions. The floor is open. You can,
unmute yourself and ask any question you may have. वास्तव मेरे को एक ऐसा लग रहा था कि इसमें मतलब भगवान मतलब अपने भक्त को हेल्प भी कर रहे हैं उनको, मतलब अगर अमरावती का हटा है तो मतलब उनको मतलब उनका भक्त डाइवर्ट हो रहा है तो उसको Yes. पाथ पे लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और मतलब ऐसे मेरे को समझ में थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि वो मतलब हर चीज में अगर कोई चीज वो आपको प्यार कर रहे हैं और केयर कर रहे हैं, पर वो जब आप डाइवर्ट होते हो या आप सही पाथ पे लाने के लिए कुछ इस तरह से वो आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, कुछ इस तरह यस से। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैलिड पॉइंट कि भगवान दैत्यों के साथ तो ऐसा नहीं करे। लॉर्ड इंद्रा का जब बहुत ज्यादा प्राइड बढ़ जाता है तो कोई राक्षस आके वो कर लेता है टू हेल्प लॉर्ड इंद्रा ओनली। सो दिस इज डिवाइन्स मर्सी, इट्स लाइक अ kadvi medicine, but it is for the long term benefit of Lord Indra only. Yes, so I also agree. So any questions, Latika, you have any questions today? Anji Di, I have one question. Why मतलब there was in text कि भगवान himself asked in मतलब इंद्रदेव जी कि वो लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भी पूजा करे। So why मतलब वो मतलब what we have learned कि वो मतलब कृष्णा जी सुप्रीम। So वो ही क्यों उनको कह रहे हैं कि उनकी भी आप उनको भी करो, पूजा उनकी भी हाँ, करो। वो एक कॉन्टेक्स्ट में उनको कह रहे हैं, मतलब नॉट ऑलवेज। जैसे कि वो कोई राक्षस आ गया, क्या नाम था उनका, जो देर इज वन डीमन राइट, जिनके लिए, जिनके बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, हु इज एक्चुअली नॉट अ डीमन इन दिस केस, ही इज वृतासुर, वाज इट? ही इज द काल डिवोटी नेम एंड ही। नहीं नहीं, आई थिंक इट वाज वृतासुर राइट। I can't recall his name. I may be wrong. But he is actually the devotee here, and Lord Indra is a demon. तो कभी कभी लॉर्ड इंद्रा कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं विच आर तो भगवान उनको इनडायरेक्टली इस तरह बोलते हैं कि यू डोंट नीड टू, व्हेन ही इज नॉट लिसनिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस, तो लॉर्ड इज सेइंग कि आप मेरे पास मत आइए, आप हम तीनों बराबर है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, शिव जी के पास जाइए, इस तरह से। So it's not like a final conclusion that we are all together, I mean, at the same level. It is for a particular context. And obviously, if we go to Srimad Bhagavatam, we'll know कि वो exactly किस context में उन्होंने बोला था. But it would be in a particular episode, he would have said it to Lord Indra. Don't take it as a final conclusion, okay? और इसमें आप देखिए ना, उसमें लॉर्ड इंदिरा सैड हो रहे हैं, मतलब ये सेंगे देखो वो तो ऐसे बोल रहे हैं मुझे, जो आपका क्वेश्चन है ना वही लॉर्ड इंदिरा का भी है, कि हमें तो पता ही है कि भगवान इज द सुप्रीम, बट व्हाई इज ही सेइंग लाइक दिस टू मी, बिकॉज ही डजंट लव मी, ही इज सेइंग लाइक दैट राइट। सो ही इज ऑल्सो फीलिंग द सेम मुझे थिंग दैट अटेंशन यू नहीं आर। दे रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर हाँ नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब मुझे वो कह कह रहे रहे हैं हैं कि कि आप हम्म ब्रह्मा के पास चले जाओ, आप शिव जी के पास चले जाओ। हम्म। एंड आई कांट रिकॉल, डिड वी गो टू द पार्ट वेयर ही सेड कि उन्होंने जो गोवर्धन में वर्षा कराई थी, did he mention that in the text? नहीं right? इसके बाद है शायद वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। Any other questions? So when we were reading this, I just want to say what I remember. So everybody knows the Govardhan episode, right? Where Lord Indra ने 7 दिनों तक वर्षा की थी और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था और सारे अपने परिवारजनों को, वृंदा ब्रजवासी को सेफली रखा था। तो उसके बाद लॉर्ड इंद्रा ने, मतलब ही केम एंड ही एक्चुअली वेंट टू लॉर्ड ब्रह्मा टू सीक इंस्ट्रक्शंस कि अब मैं कैसे, मतलब ही वाज सो एम्बैरेस्ड कि ये तो भगवान थे और ये मैंने क्या कर दिया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो सबके सामने सॉरी नहीं बोल सकते थे बिकॉज ही वाज सो गिल्टी। तो उन्होंने एक्चुअली अकेले में जाके, भगवान जब, मतलब ये बारिश खत्म हो गई थी और गोवर्धन में एक, देयर इज अ पर्टिकुलर
place where at the foothill of Govardhan Lord was alone, where he came, और उन्होंने फिर वहाँ पे भगवान की जो सूक्तियाँ बोली और उनको उनसे माफी मांगी है। और तब सुरभि गाय आई थी और उनसे भगवान का दूध से जो उन्होंने भगवान को क्या बोलते हैं, दूध से जो भगवान को नहलाया था, उस समय ही भगवान का नाम गोविंद गोविंद रखा गया था। तो फ्रॉम दैट प्लेस, दैट टाइम ऑनवर्ड्स। बट मुझे फनी ये लगा था कि आपने सबके सामने गलती की लेकिन जब आपको क्षमा मांगनी है तो मतलब ईगो है कि मैंने इतनी बड़ी गलती, तो अकेले में जाके आप यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस। सो इट वाज सो टेलिंग for us, because it's a reflection of what we do in material universe also, right? And also so there's this in Lord Indra's episode of, obviously Lord Brahma's episode will also come where Lord Brahma ने जो गाय और गोपास को चुरा लिया था। तो my thing is it is so कि मतलब material world is so complex, मतलब इतना मृग तृष्णा है कि even demigods who know everything they also get perplexed, वो भी confused हो जाते हैं। तो how how easy it is for us normal human beings to also get confused and pick up a wrong direction. And because of that we need a spiritual master, because alone independently there's only so much we can move ahead. We do need someone to anchor us, to show us the right direction. And that's one of the reasons we need a spiritual master, not just at one point but throughout our life, till the time we take last breath on this earth. So Dipta, you want to add the importance of spiritual master? Yeah. So, when I was reading this, so I able to connect with this material life, what the type we are leading. And there are many times that we did this kind of mistakes, when we are saying that okay, this is I am doing, or when we try to make the things very appropriate way in our thought, but actually that is not so required, because the doer is somebody else, who is uh, we are just doing, we are just following his instructions, and we are not the doers. And when we are using our own intelligence, so we think that we are doing something, but actually we are not doing that. So in this way we are doing this kind of offenses, and sometimes we realize, but sometimes we are not realize. So Indra at least realized the example Pasang has given regarding that Govardhan Parvat, but still he not able to, he was ashamed for this action, but still he don't have that courage to ask Apologize. divine in front of everyone. He selected to do in private way. So, but when we follow the instructions of the master, so that is why guru is very important, because whenever, for example, whenever we are going somewhere, or whenever we are doing performing some action, there is a protection from guru. And how it is there from the protection of the guru. So he not only guide us, he also protect us whenever we are doing some kind of offense. So he took our karma and help us to grow further. Somebody is there who is fighting for us. He just fight us in layman language. I will say that as a lawyer. For example, when we went to Mayapur, when we went to Navdeep, so
how we able to perform all these activities? Because first it was the Guru's instruction which we are following. Secondly, he protected us. And third, many offenses we did there, knowingly, unknowingly. Like there are the three modes, which is your goodness, passion, and ignorance. We did those mistakes, but the Guru is there, who because due to his blessings we get the forgiveness from divine, and the amount of blessings and grace we get there to get from the divine. Similarly, if we are going to Vrindavan and performing certain activities, because we are not following completely Gaudiya Samaj. We are again a subcategory of Gaudiya Samaj, where we have some other potencies which we are following completely energy wise, not deity worship and certain things. Like we are eating garlic, onion, and we are not doing deity worships. And moreover, there are certain other regulations are also which we are not following, because our master has given the clear instruction that we can able to do these things. I'll give you the examples. For example, if there is a mantra given by our master Nalin Nirula, Klim Krishnai Govindai Gopijana Vallabhai Swaha, which we can chant congregation wise, because our master taught us in that way. But in Gauriya Madhav Samaj, we are not allowed to do that in front of anybody. Even we cannot do in front of our guru brother and sisters, or within the congregation. But we can able to do that because our master taught us in that way. He gave us that privilege to do that. Similarly, Reiki and KQ is a healing energies of the Krishna. Okay, as master taught us, that is a crown chakra energies and heart energies of Krishna. So when we are using that energy give us the permission that we can, for example, I just give you the example. Like when we are worshipping deity worship and doing only simply chanting when people are not healers. So every time we are listening that man buddhi ahankar, we have to heal that man buddhi ahankar. So when the difference is, when we are only chanting Hare Krishna Mahamantra and try to resolve our man buddhi ahankar, it is very hard to do that. But when we are doing our healing, which techniques and which methods taught by Nalin sir, it's help us to give us that consciousness, give us that awareness, which help us to move further to dissolve our hard karma due to our man buddhi ahankar. So we can able to dilute it. And when we are chanting Hare Krishna Mahamantra, that sound resonance which is coming directly from the Golok, which enter our core cell of body to give that vibration, that sound energy, which help us to dissolve our man buddhi ahankar. When we are saying that core cell and body, that means not only our subtle body, but our sushma body, which is man buddhi ahankar, and the subtle body means our body, which has created with the 5 elements. So Krishna's lower energies, so that help us to vibrate and help us to purify that, which is not so easy work. So the last few, even from the last year, we are doing this kind of healing. Maybe few are new in this
in this congregation. But last year, since last year when we went to Navdeep, and later on when we went to Mahakumbh, and after that, whenever we are connecting at Vrindakund, we are consciously working on healing way. We are working on our Man, Buddhi, Ahankar, and our five elements of the body, and also due to that our senses, so that our senses going to be pure and focused on the Krishna. This is not an easy thing. This has to be done only by the our master only. So and there is a one master, which is Master Nalin Nirula, and Guru is like helping us when the soul, when we leave the body, not only in this bodily form, but when we are leaving this body and move to the destiny, which we need to decide which destiny we want to go. So in those scenarios, the Guru is even after this body also help us, and the lineage also help us to move us to the next level, so that even after this bodily form we can able to divert because of our Man, Buddhi, Ahankar. So one Man, Buddhi, Ahankar is a fuel of the rocket of our soul. So this is very, very important to purify our Man, Buddhi, Ahankar, and and for this Guru only help us. So we have to follow very, very minutely our master, our Guru, and the lineage. So when we are and how we will able to do this, so whatever the way he taught us, we have to follow simply in that way. Any queries? Latika, Sakshi? Maybe this is clear. So you want to add, Pasang, something here? Yeah, I can only say in a gist that, when we are in this path of bhakti, the path of healing, the first thing that everybody wants is to see Krishna, right? We want to see the divine. So at this stage, we can see the divine or associate with the divine as part of Vani Seva, Vapu Seva. So following the instructions of our spiritual master. So that is the key. If you We can't see whether we are with Krishna or not, but if we are following the instructions of the spiritual master as is, then we are assured that we are in good company. We are in the company of Lord Krishna. That is the bottom line in a gist. There's no other way. Yeah. And one of the I don't know about other sampradayas, but our sampradaya, including Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya, is that we do not approach the divine directly. We have to go through an agent, the agent being your spiritual master. Uh, that's the way it is. As Zipta mentioned, he is the lawyer. He is fighting our case. He is telling why this person should, move to the next stage, enter here, do this and do that. So, for example, a question was asked earlier that there's another group, an ISKCON group, who is visiting a certain holy place. So, is it okay to go with them? Of course, visiting a holy place is always good, but then you have to understand so when you're a newbie, you can go here and there, it's allowed. But after a certain point, everything has to be deliberate, right? So, what is the reason you want to accompany? Is it because you want social company because your friends are going, or is it because you're actually going for some spiritual purpose? So, if this group is not a Reiki healing group or a KQ Force healing group, it is a, let's say, an ISKCON group. So, ISKCON has four rules, right? No meat eating, no illicit sex, and chanting certain rounds. So and then they have their spiritual master who is working on their behalf as a lawyer to fight their case. When I am going with them, who so
they will get, entry. Everybody is getting entry, but actual spiritual जो प्रसाद है, जो जूल है, उसी को मिलेगा जिसको स्पिरिचुअल मास्टर दिला रहे हैं, राइट? So if I'm going with a group who have a different spiritual master, I am not following their rule. Maybe I'm doing 16 rounds of chanting, but I'm not doing the other things like Sudipta mentioned, whether it's food or the way we do the deity worship, because it's a military school, as sir said. So they are not going to fight a case for me. So if I'm going there, rest assured, they will do any offenses, their spiritual master is going to protect. But who will protect me against my spiritual offenses? And forget about offenses. Even if you do a good thing, this is sir ne bataya hai, if somebody is coming me for an advice and I'm giving that advice to that person, and that person listens to my advice and changes their life's direction, तो वो जो उनका सारा bad karma will be negated, right? Who will take that bad karma? The person who is given the advice. So, forget about the offenses that you do in a dham. Even the good things that you do, let's say you start distributing books, और किसी ने वो book लेके उनका अंधकार हट गया, तो वो कर्मा भी आप ही लोगे, because you're not protected by your spiritual master, because your spiritual master didn't give you an instruction ki go and stand in the traffic light and start distributing books. So if somebody else is doing it by the grace of their spiritual master's instruction, they are protected by their spiritual master. But you are not, because you're not part of that school. So these things, if we have the clarity, then it can save us from lot of, entanglements of further karma. Yeah. Any queries regarding this? I think we have digressed to a little bit different route, but we can always come back. You can, feel free to change the topic and pull back, pull us back. Yeah, these are the key parameters, and few of our we are connecting monthly basis at Vrindakon. So some people are already aware of this, but few are not. So that's why we bring this in front of everyone. So who is मेरा एक excited question है to, sorry, go ahead. Go ahead, Nidhi. मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ब्रह्मा जी की एज है उसमें जैसे लिखा हुआ है 14 इंद्र 14 मनु, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि 14 इंद्र क्या है वहां पर वो। नहीं तो सी एक तो डिस्ट्रक्शन होता है कि वो पर हर रोज एक डिस्ट्रक्शन होता है, राइट, उनका, जिसमें अप टू ब्रह्मलोक में सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और एक है जो पूरा पूरा साइकिल, जो चतुर्युग है, कितने चतुर्युग हो गए डिस्ट्रक्शन होता है। एक उनके पर डे डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये वो मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, जो मनु और एक मनु भी सेम। महाप्रलय और एक प्रलय है ना, तो एक तो हाँ, पर हर हर रात भी उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब ब्रह्मा की जो एक रात है उसमें भी सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा शुरू करते हैं। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई थिंक उसमें जो सत्य लोक है वो नहीं होता डिस्ट्रक्ट, नीचे के हो जाते हैं। और जो ओवरऑल होता है डिस्ट्रक्शन, उसमें सब कुछ ही खत्म हो जाता है, फिर से संरचना होती है। और एज के लिए आई थिंक वी कैन स्टडी दैट चैप्टर, और या फिर जो सुदीप्ता ने बोला भगवत गीता में जो सर ने हाँ, चैप्टर एक्सप्लेन 8। किया हुआ है ना, चैप्टर 8 चैप्टर। में एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन चैप्टर 10 में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चैप्टर 8 में थोड़ा डिटेल में है। So he lives for 100 divine years, और every year is of 365 days, जिसमें कि 1000 चतुर्युग होते हैं। और एक चतुर्युग में सत्य त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे करके, तो वन दैट इज वन, तो ऐसे 1000 होते हैं। तो वन फुल डे आई थिंक इज 2000 समथिंग चतुर्युग। एंड देन वो तो है ही, पर वो एवरी नाइट भी उनका वो हो जाता है काउंट डिस्ट्रक्शन। होता है। दैट इज मिनी प्रलय। तो उनके हर हर दिन में भी आई थिंक एक नए इंद्र आएंगे, क्योंकि अगर स्वर्ग लोग जा रहा है तो एवरी डे न्यू इंद्र इज कमिंग ना, नहीं?
And Indra is also a post, right? Brahma is also a post. दैट इज वो हमारी मतलब बताया कि फ्रॉम जो हम कहते हैं ना कि वी आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर वन पोजिशन बिकॉज ब्रह्मा's position is also one. They can be only one jiva who will get that position, but that is not the case in spiritual world. Spiritual world में भगवान expand करते हैं infinitely, so everybody gets access to the divine. But यहाँ पे रेस्टोरेंट में एक ही सीट है, बस में एक ही सीट है, ब्रह्मा जी की भी एक ही सीट है, and everybody is fighting. So that is the nature of material world, not present in spiritual. है Anything else? बोलो। Yeah, go ahead, Nidhi. श्री भगवत गीता जी में भी लिखा हुआ है, कृष्णा ने कहा है कि मैं आपका मास्टर के फॉर्म में प्रेजेंस हूँ आपके साथ। भगवत गीता में जब पढ़ा था मैंने, तो गुरु के फॉर्म में कृष्णा हाँ, प्रेजेंस है उनकी तो हमारे उसी साथ। को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे गुरु के फॉर्म में। तो मतलब ये नहीं कि गुरु की फोटो लगा ली और हो जाता, गुरु के इंस्ट्रक्शंस है ना। वाणी इंस्ट्रक्शन सेवा एंड वपु सेवा। वपु सेवा इज इज उनको, बॉडीली फॉर्म की सेवा, एंड वाणी सेवा इज इज इंस्ट्रक्शंस। हाँ, वो हमें सिखाएंगे कि एजेंट कैसे है वो। हम सो उनके। बेसिकली जो भगवत, सॉरी पासा, आई कैन ऐड हियर। यस, प्लीज गो अहेड। So, Bhagavad Gita is a rule book. How to live your life based on that rule book. और उन्होंने उसका एक मेन रूल बुक का जो इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड इज द लॉर्ड कृष्णा, एंड हाउ वी विल गेट टू कनेक्ट विद द लॉर्ड कृष्णा थ्रू आर एजेंट हु इज आर गुरु. सो इन फॉर्म ऑफ गुरु, गुरु इज ए एजेंट जो कि हमें लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट कराते हैं, और गुरु ही हमें सबसे ज्यादा शॉर्टकट वे बता सकते हैं, जिसका जो गुरु होगा वो उसके उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको शॉर्टकट वे बताएंगे, जो उनको फॉलो करना है वो इंस्ट्रक्शंस को. तभी आप सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्ट हो पाएंगे. दिस इज अ फंडामेंटल थिंग ऑफ भगवत गीता. और उसके बाद उसमें बहुत सारे रूल्स है जो कि आप जैसे जैसे समझोगे, एक एक रूल जो वो प्रैक्टिकली ऐसे ही प्रोसीजर होता है जो कि नलिन सर ने सिखाया है. वो यही है कि आप जब एक रूल को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, तब आप नेक्स्ट रूल आपको ऑटोमेटिक दिखता है. फॉलो करते हैं कि मतलब उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार लेना है, नॉट प्रिटेंड वाइज. कोई क्वेश्चन है निधि? नहीं, तो आ, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे, जब हम इसको फॉलो करेंगे फिर हमें कोई नई चीज सामने आए, रूल आएगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपका फिर कुछ एक अनर्था डिसॉल्व होगा, तो आपका नया कोई एक नया वो मिलेगा आपको, विजडम. It's like a ठीक है। staircase where you see this. आप कहते oh, I have reached the highest, but then once you reach the highest, a new step comes कि अच्छा now this is, तो वो step reveal होते जाते हैं. So it's endless, है ना. Explain. I think today's class is becoming very serious. You have to make it light. So who is excited about Lord Brahma और उसके बाद क्या होगा? So far, we have gone from that Brahmin, then the southern king, and then Indra, and then Brahma. तो everybody is so humble कि वो कहते हैं अरे मैं नहीं हूँ, मुझसे अच्छे तो वो है, मैं नहीं हूँ, मुझसे अच्छे तो वो है. तो जो ये चार हैं, आई एम जस्ट आस्किंग सम रैंडम क्वेश्चन, उन चारों में से आपको सबसे अच्छे कौन लगे so far, between that Brahmin and the southern king and Lord Indra and now Brahma ji? Who do you think, I like this fellow, or I like the way Sanatan Goswami ji has described the way or the way you like their lamentation कि मुझे इनका lamentation था. For me, I think Lord Brahma was such a drama queen. मतलब I loved it. सही में. इनका lamentation मतलब क्या. तो मैं तो इट वाज लाइक वेरी फनी. मैं तो हंस रही थी कि ये क्या मतलब.
So we can go one by one. Let's see who is here. Latika, you want to start? Who was your favorite and why? भी Between आई these. हैव नॉट, मतलब अभी तो ब्रह्मा जी का बस इंट्रोडक्शन ही हो रहा है इसमें, सो मतलब तो आप आगे उन का तो तीनों में से अभी बता तो इतना दीजिए. स्टार्ट नहीं हुआ है। बट आई मुझे थिंक जो विल हैव अ क्लियर विनर. हाँ जी, जो मुझे जो जेन्युइनली मुझे वो जो राजा थे साउथ के, मुझे उनका वो बहुत अच्छा लगा। मतलब हाउ ही डिस्क्राइब्ड कि कैसे वो क्यों, मतलब ही वाज डूइंग सो मच बट फिर भी ही मतलब उनका जो डिससेटिस्फेक्शन था ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा टुवर्ड्स। उनका डिससेटिस्फैक्शन वाज सो डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड हाँ इंद्रा, नहीं? करेक्ट, हाँ हाँ, पता नहीं बट Definitely. समहाउ आई डोंट नो, मतलब Yeah, it's मुझे very ऐसा लगा humble and कि sincere. Yeah. हाँ हाँ, बट समहाउ मतलब आई डोंट नो, दिस इज माइट बी अभी तक माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे इंद्रदेव जी का डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि क्या उनमें अभी भी बहुत फॉल्स, मतलब उनकी क्लैरिटी अभी भी इतनी नहीं है कि जैसे द वे हम्म ही इज लाइक कि वो मेरे पास नहीं है भगवान, वो वो इधर सब रहते हैं मतलब। नाटक है लतिका. वही तो कह रही हूँ. अच्छा, सो मे बी शायद वो आई एम नॉट ड्रामा एबल क्वीन, टू। मतलब वो सब नाटक है. अच्छा। देखो क्लास में भी जब कोई स्टूडेंट होता है और उस पे टीचर हाँ. की निगाह नहीं पड़ रही होती है, तो एक स्टूडेंट होता है कि वो एक चुपचाप ही क्लास बैठ में के फर्स्ट देखना आ रहा है, चाहे। जो सुदीप्ता ऐसे बोलो ना, जो हाँ क्लास में हाँ, फर्स्ट आ रहा है. हाँ. जो जो फर्स्ट आ रहा है और फिर भी उसको लग रहा है कि अरे कोई भी चीज पे अगर टीचर ने उसको नहीं ध्यान दे के किसी और बच्चे पे ध्यान दे दिया, तो एक होता है ना कि वो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, और वो ये बोलता है कि देखो मैं तो ये भी कर रहा हूँ, फिर भी टीचर ने तो मुझे ये वाला रोल नहीं दिया। टीचर ने मुझे इस प्ले में मुझे ये रोल नहीं दिया। और टीचर तो देखो कभी, जैसे वो बोल रहे हैं, कभी ये पांडवों के पास चले जाते हैं या कभी वहां पर बिजी होते हैं, पर ये मेरी तरफ निगाह भी नहीं डाल रहे हैं, तो मैं मेरे को मेरा एक्सेस ही नहीं है उनके साथ। इवन जो देर अच्छा। ऑल्सो महाभारत सी. का वो ड्रामा था, वो जो क्या? गोवर्धन में जो वहां नहीं नहीं, वो बारिश तो करी ड्रामा नहीं था. थी। नहीं नहीं, ये नहीं जो नहीं, वो ड्रामा ये जो नहीं। नारद जी के सामने अच्छा, डायलॉग बाजी है ना, मैं वो कह रही था। हूँ वो हाँ ड्रामा हाँ है. हाँ, बट ऑल्सो सी, वो ये दिखा इट्स रहे ऑल्सो हैं इज. मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज गो एट हाँ, गो पासन। एट गो एट. नहीं, आई वाज सेइंग इट्स डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन. अगर हम सेटिस्फाइड हो गए अपनी पोजीशन से, देन वेयर इज द ग्रोथ? है ना? यू कैन वी कैन लुक एट इट लाइक करेक्ट दिस करेक्ट ऑल्सो, करेक्ट। कि ही इज डिससैटिस्फाइड. इतने डिससैटिस्फाइड तो उतने ही जोश से वो और कोशिश करेंगे आगे बढ़ने हाँ की. मतलब ये हाँ नहीं कि सब कुछ मिल गया अब मैं आराम से हूँ. इट्स नॉट दैट. एंड बिकॉज इट्स द कंपनी ऑफ नारद जी, मे बी कोई और उनके डेमिगॉड बोलते तो वो शायद बोलते या मैं तो हूँ. बट बिकॉज नारद ही नोज, नारद जी के सामने सच सच ही निकलेगा. So it's also because who is asking the question? Okay, Latika, you were complete. You completed, right? हाँ जी। Your okay. Parul, अब आप बोलिए. Your favorite character so far. ब्रह्मा जी। अच्छा. हाँ, मुझे ब्रह्मा जी का वो जो उन्होंने भूल गए थे कि वो भगवान हैं, और हम्म उनके वो सब कुछ लेकर के वो चुरा के ले गए थे ऊपर, और फिर भगवान ने 1 ईयर के लिए दोबारा से सब कुछ बना लिया था। और जब बाद में उनको जब पता चला कि वो भगवान है, तो फिर वो अपनी गलतियों को रियलाइज करने के लिए नीचे अपने हमारे वृंदावन में आए थे। और मतलब जब वो आए थे, तो वो जिस तरीके से वो छुप छुप के देख रहे थे, एक कहीं पे मैंने छोटा सा कहीं पढ़ा था या सुना था किसी जगह पे, कि वो ऐसे छुप छुप के देख रहे थे कि कृष्णा अपने ग्वाल वालों के साथ ना खेल रहे हैं। तो कृष्णा ने देखा दूर से कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम एक साइड में आ जाओ प्रभु, मुझे ना आपसे माफी मांगनी है। तो वो जो कह रहे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि आप थोड़ा सा दूर जाओ, मैं भी जरा कुछ बात करके आता हूँ। तो वो जो फ्रेंड्स थे ना, वो बोल रहे थे, अरे ये कौन चार मुंह वाला हमारे लाला से बात कर रहा है, कौन है ये, कहाँ से आ गया है चार मुंह वाला। और तो स्तुतियां मतलब उस गा रहे जगह हैं। पे, हाँ, और उस जगह पे शायद वो जो ब्रह्म संहिता है, शायद वो वहीं पे ही उन्होंने गाई नहीं नहीं, थी। वो वहां पे नहीं है. उन्होंने ब्रह्म ब्रह्म स्तुति की है. हाँ. ब्रह्म बट स्तुति, ब्रह्म पारुल, स्तुति एक्चुअली चली थी। you are jumping. We haven't reached as a group to that वो incident yet. But yeah, please go ahead. हाँ, मतलब मुझे वो इंसिडेंट बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा जी का, कि हम्म इनोसेंटली कैसे वो उनसे माफी मांगने आए, कि रियलाइजेशन हुआ
But actually, ब्रह्मा के पास। वो इंसिडेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन टर्म्स के पार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। पूरा जो गौड़िया सिद्धांत इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में ही सेइंग कि you are the lord of the universe, सुप्रीम। how am I supposed to recognize you, because you're supposed to wear these jewelry और ये सारा, but you are wearing one mala and all. तो actually उन्होंने ये भी प्रूव किया है कि कृष्णा इज ग्रेटर देन लॉर्ड विष्णु, because Lord Brahma himself is saying. तो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत is actually like he puts a stamp on it with that incident. He's saying कि how am I supposed to recognize you, क्योंकि आपको तो ऐसे ऐश्वर्य में होना चाहिए और आप यहाँ पे जूता खा रहे हो, नंगे पैर भाग रहे हो, गायों को कर रहे हो, बिल्कुल। तो how am I supposed to? He actually proved that Krishna is higher. That is his big contribution. और ये भी बोल सकते हैं कि भगवान ने उनको यूज किया टू प्रूव दैट, बट एंड ऑल्सो कि वो देखो अगेन वो भी पागल हो गए। तो हम कौन है, मतलब यहाँ पे वही। घूम जाना बहुत इजी है, माया आपको ले लेती है उसमें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू पारुल। अंगिशी, मुन्नी, यू वांट टू शेयर हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर सो फार? I think my favorite character will be इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही शिकायतें कर रहे हैं कि वो मैं मतलब मुझे मिलते भी नहीं है, मैं उनको ढूंढता रहता हूँ, कभी गोकुल में जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आई थिंक इंद्रदेव जो है ना, वो जिस तरह से वो डिससैटिस्फाइड अपना दिखा रहे हैं वो, आई थिंक इंद्रदेव। वेरी नाइस, थैंक यू। Sudipta, you want to add? Chalo, we'll come back to you. हाँ, Joy, we'll leave you, let you go for this time, but we'll come back to you next week. Nidhi, you want to share? अच्छा, निधि ने share कर दिया ना? Nidhi, did you share your favorite character? Not yet. नॉट। Please share, please share. हाँ, बेसिकली मैं ज्यादा तो कनेक्ट किंग से हुई, जिनके यहाँ सब अच्छे से हो रहा है, क्योंकि वो अर्थली प्लेन है। राजाओं की हम्म। बात हमने सुनी थी, और उनके यहाँ कितने अच्छे से हो रहा है सब कुछ, सब पूरी प्रजा भी कर रही है, घर के हर जने भी कर रहे हैं, दे आर सिंगिंग डांसिंग एंड ऑल। वो बहुत अट्रैक्ट किया। और फिर मुझे थोड़ा सा इंद्रदेव के बारे में, मतलब इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो भी बहुत बड़े भक्त हैं कृष्णा के। और पर उनका वो जो अभी क्लियरिटी आई कि वो सिर्फ टेंट्रम्स दिखा रहे हैं कि वो मेरे ऊपर फोकस करें और मुझे ध्यान दें, या जिस तरह से जो अभी मेरी समझ में आया, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। But I think you raised a very important point regarding the Raja. King, because he is like that, he is, influencing, positively influencing his family, unki puri praja. So whole desh will, go into that direction. मतलब Jहाँ वो they have कनेक्ट, accepted the divine in their lives. Yeah. वो मुझे बहुत अच्छा लगा। So what a service. क्योंकि अपने आप को करना एक बात है, बट बी इन अ पोजिशन वे यू कैन, योर स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस इज सो लार्ज, और आप सबको ही लेके जा रहे हो उस तरफ, क्योंकि लोग हमेशा जो सोसाइटी में हाईएस्ट है उनको देखते हैं, दे फॉलो देम ब्लाइंडली, है ना? तो वो बहुत वेरी अच्छे से नाइस। डिस्क्राइब किया है कि सब प्रजा के भी जने हैं, उनके घर के जने भी हैं, दे आर डांसिंग, दे आर या बजा भी रहे हैं वो, और वो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, वो बहुत या अच्छा। Great. एंड साक्षी ने चैट में बता दिया है कि she like Brahmin because when he started the puja, he first satisfied the surrounding birds, animals, and others. Very nice. So yes, Brahmin. And now we move on to Sarita Di. Sarita Di, you want to share your favorite bhakta so far? हेलो। Yeah, Sarita Di, please go ahead. अभी तो मुझे कोई नहीं मिला फेवरेट। मतलब इन तीनों में जो नारद जी जिनके पास गए हैं, वो ब्राह्मण, वो सदन किंग, एंड इंद्रा एंड ब्रह्मा. Between the four, whom did you like the most so far? This section तो I did not Yeah. read it
वेल, तो इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करी थी। आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू यू ऑल। पर मैं एक चीज और ऐड करूंगी, व्हेन यू सेड ना, इंदिरा सेड पर्सनली जाके उनको सॉरी बोलते हैं। द रीजन व्हाट आई थिंक दैट ही पर्सनली जाके सॉरी बोलते हैं, दैट ही इंदिरा वुड बी स्टिल अबव द अस। फॉर अ टीचर ऑल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, he is still above us, because whenever we chant, we are also, he is also getting that benefit of our chanting. Yeah, 10% he's taking. Yeah. So that's the reason there are certain hierarchy that they are trying to establish, Maintain. nature, what Brahma and all this is one thing that I've understood in this, कि उनका outlook कैसा है, and how it is their nature, what Brahma, the Shivji, in their We own haven't way. we haven't reached Lord Shiva yet. Please don't bring him हाँ, as of yet. so they're just trying to explain कि uh, how is their nature is, that how Indra is, how, what is his position actually. Okay, Sarita Di, thank you. Starlight, you want to share, Riyanshi? Who's your favorite Bhakt devotee? Is she even there? Yes. Yeah, please share who is your favorite devotee. Is it Prahlad? Yes. And why? Because he loves Vishnu and he believes in God. And he still loves his father if he's still a demon. Very nice. Thank you. Vandadi, you want to share your favorite Bhakta so far? नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है, सब शेयर हो ही गया। फिर भी आप spontaneously you share something, na? See, you've done healing, so whatever you comes out of your mouth will help everyone. नहीं, वही जैसे सुदीप्ता वो कह रहे थे ना कि सब वो भगवान सब जानते नहीं है ना, ऑल द डेमीगॉड दे डोंट नो हु कृष्णा इज। सर भी बताते थे भगवत गीता में दैट दे डोंट नो द रियल what Lord Krishna is and his supreme personality and what all qualities he has. So इसलिए इंद्र जी जो है वो भी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वही है कि knowing Krishna is सबसे difficult thing है. It's not an easy thing to know him. Yeah. Even Indra and Brahma and Lord Shiva get bewildered. Yeah. Thank you, Vandadi. Yeah, Sudipta, please go ahead and share your favorite devotee and why. I like two characters. One is Brahmaji and the second one is Indra. And the third character I like Narad Muni, the best. जिन्होंने ये Can you hunt please, start we're not talking. Let's keep him out of this. We're talking about the devotees So, because I don't want anyone else to take Naraji's. No, please go ahead and yeah, please go ahead and glorify him. I like Narad because he's so वो इतने प्योर है कि इंद्र तक उनके सामने ट्रूथ, अपनी जो ट्रू ट्रू उनकी जो फीलिंग है, अपना जो प्रिटेंस है, वो सब साइड रख के वही रोना धोना किया कि देखो कृष्णा मुझे देख भी नहीं रहे हैं, वो तो उनको तो चेज करना ही मुश्किल है, वो दूसरे उसको। सिमिलरली ब्रह्मा जी का भी कि वो सो इसलिए नारद जी का कैरेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट कि
हम उनको बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं श्रीनिवास जी के आंगन के रूप में, इन डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस। बट यहाँ पर उनका मेन कैरेक्टर यही है कि वो इतने प्योर हैं कि बाकी डिवोटीज भी उनके सामने आके होल हार्टेडली कोई भी चीज बोल पा रहे हैं, जो उनके अंदर जो व्यथा है कि हम पे दृष्टि नहीं पड़ रही है। सो और दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो अगर आप वो चारों में से बोल रहे हैं तो बाकी भी अच्छे हैं, बट ये दो थोड़े से नटोरियस टाइप के हैं कि उन्होंने इतना इतना एग्जैगरेट किया चीजों को कि हाउ कृष्णा, हाउ दे विल गेट दिस ब्लेसिंग। So I like these two characters. Thank you, Sudipta. And yeah, you raised a very important point for Narad ji, because see, as a spiritual master, he's so kind. They are not afraid to express their innermost feeling. कि कई बार spiritual master से डर के या फिर सिर्फ हाँ हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, and only saying, oh, I'm doing my practice very regularly, everything is happening good, he to be in good books of the spiritual master. nahi, he is inspiring others to be truthful, because he is so kind and they know they will not be judged, है ना? So great. So anything else anyone wants to add before we complete today's session? So last time we met within 3 weeks because Sangeeta Di was insisting, and today she is not present, missing in action. But that's all right. This will be recorded and we'll upload it on YouTube. So anybody who has not attended can revisit. So we'll keep it after 3 weeks, our next meeting. Is that okay? This time works for everyone? Okay. So that will be around 4th of April. तो देखते हैं, ठीक है? And I'll also check if there's any major festival. अगर होगा तो we'll do like 1 or 2, maybe 1 week फोर्थ का earlier or before. फोर्थ और One question. फोर्थ टू एट तक आई एम ट्रैवलिंग। हम मायापुर जा रही हूँ मैं, Okay. तो फिर मेरा मिस हो जाएगा। चलो कोई बात, हम रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही। ठीक है, ओके। या एक दिन पहले भी कर सकते हैं, पता नहीं, देखना पड़ेगा डेट क्या है। 4th is Saturday. So we do this on Saturdays, no? मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? Yes, please go ahead, Nidhi. मतलब मुझे ऐसा भी होता है कि जब मतलब जैसे कृष्णा जब रिवील करना चाहते हैं वो तभी रिवील होते हैं, जैसे इंद्रदेव की गोवर्धन पूजा या ब्रह्मा जी का ओंको ले जाना, वो उनके सखा का, तो मतलब इतने उसमें होकर भी उनको नहीं पता चल पाया कि वो प्रभु हैं। तो ये प्रभु की इच्छा से ही सब ये होता है। हमेशा प्रभु की यहाँ पे हम कितनी भी तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, राइट? तो इट इज अप टू हिज स्वीट विल कि वो किसको कब कैसे रिवील करेंगे। वी कैन नॉट कि ये हमारा हक है या मैंने 10,000 साल तपस्या कर ली, हम कुछ भी कर ले, इट इज कम्प्लीटली बाय हिज प्योर विल। तो आवर बेस्ट, एज वी सेड अर्लियर, आवर बेस्ट chance is कि we follow the agent spiritual master instruction, then we have hope that he will choose to reveal. It is completely his jurisdiction. Nobody can ask him, nobody can command him, because he is divine, right? अगर उनके ऊपर कोई होता तो फिर then he is not divine. So it is completely his jurisdiction, his sweet will.
तो वो ऊपर से ही आ सकता है, नीचे से नहीं हो सकता। ये वो मटेरियल नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड नहीं है कि हम मोर्चा निकालेंगे कि तुम हमें दिखाओ या हमें एंट्री दो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। या इसीलिए बोलते हैं ना, सॉरी पर्सन का कहना है, ये ऐड समथिंग हियर। प्लीज प्लीज, यस। तो इसीलिए बोलते हैं ना, मास्टर्स एंड द एसोसिएशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अगर अगर कोई भक्त है और वो, दैट इज अ वेरी सैड थिंग, अगर कोई भक्त है और वो आपका एसोसिएशन नहीं है उस मास्टर अपने गुरु के लीनेज में, और वो आपको याद नहीं कर पा रहा है अपनी चैंटिंग के टाइम पे, मतलब आपका एसोसिएशन ही नहीं है या अपनी हीलिंग के टाइम पे, सो दैट एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक भक्त, जैसे कि नारद मुनि जी हैं, वो एक भक्त है, ठीक है, उन्हीं के एसोसिएशन में आके बाकी लोग भी अपना रिवील कर रहे हैं अपना ट्रुथ। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु एंड एसोसिएशन। और गुरु ने ही सिखाया है एसोसिएशन, नॉट ओनली एसोसिएट टू चिट चैट, राम कथा के लिए नहीं, टू एसोसिएट फॉर द टू द डिवाइन, कि कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक गुरु के ग्रेस से और दूसरा भक्त के ग्रेस से आपको कृष्णा रिवील होते हैं। हर किसी के अपने कृष्णा होंगे, मेरे अपने कृष्णा होंगे, किसी के और अपने होंगे, लेकिन जब आप गुरु से एसोसिएट होते हो, सो जो ट्रुथ ऑफ कृष्णा है ना, वो रिवील होता है। और तब कृष्णा भी अपने आप को रिवील करते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग। संग ऐड करना चाहोगी? नहीं नहीं, ठीक है, यू सेड इट ब्यूटीफुली। दीदी क्लियर हुआ ये बात? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारी प्रैक्टिस से आता जाएगा हमारे अंदर। हाँ देखो, अगेन कृष्णा का और गुरु का ग्रेस होगा कि आ, हम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जब तक वो ग्रेस, उनका ग्रेस नहीं होगा ना, तब तक वो मिल नहीं पाएगा। तो ग्रेस के लिए हमें हमारे प्रिटेंड्स छोड़ने पड़ेंगे। ये सर ने बार बार भगवत गीता की हर क्लास में आप जाओगे, 5th चैप्टर के बाद के सारे चैप्टर्स में ना, प्रिटेंड के बारे में सर ने बताया है कि डाइल्यूट योर ईगो, जो कि उसी से ही प्रिटेंड क्रिएट होता है। जहाँ इमेज के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हम इमेज के बारे में सोच रहे हैं, जो हम गुडनेस की बात कर रहे हैं, तो दैट इज गुडनेस कम्स फ्रॉम दैट ईगो ओनली ना, कि मैं अच्छी हूँ और लोगों को मैं अच्छी ही लगूं, तो मैं वो गुडनेस से काम करूंगी। इग्नोरेंस है तो इग्नोरेंस में तो पता ही नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। पैशन में भी नहीं हो सकता है ये काम। ये धीरे धीरे मतलब हीलिंग से, अवेयरनेस से। हाँ, से हो सकता है, पूरा पूरा श्योर। सर ने ये बार बार बताया है। मैं वो वाला यूट्यूब का ना, वो वाला भी शेयर कर दूंगी, जिसमें कि उन्होंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है कि कैसे हीलिंग से वो डाइल्यूट हो रहा है और हरे कृष्णा चैंटिंग से क्या हो रहा है। सो यू, दिस इज अ प्रैक्टिस। और अगेन ये सब करने के बाद भी ऐसा है कि कृष्णा को जब रिवील करना होगा ना, वो तभी रिवील करेंगे। अगर उनको नहीं करना होगा तो वो नहीं करेंगे। वो अप टू हिज ग्रेस, जैसे पासंग ने बोला, जो की है ना ऊपर से खुलता है, यहाँ से की नहीं खुलेगा, यहाँ पर हम सिर्फ नॉक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम अपने गुरु के उसमें रह सकते हैं ना, उनके साथ, उनपे हाँ, वो उनके वो फॉलो ही जो। करना है। और जब हम कह रहे हैं ना हम नॉक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ही हम जब गुरु के रूल्स को फॉलो करेंगे, जो गुरु ने हमें बताया है, उनकी टीचिंग्स और जो उनके बताए हुए चीजें हैं, तो वो हम नॉक कर रहे हैं डोर पे। अब वो ओके। उनका ग्रेस है कि वो खुलेगा डोर।
जी कभी कभी हमारे लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आता ही इसीलिए, जैसे वो इनके बारे में बताया गया है। To dilute that To situation, check if you are passed or not, to check, है ना, to check. test whether it's Pandavas going for vanvas, वो सारा टेस्ट है ना, इवन फॉर प्रहलाद इट्स अ टेस्ट। तो जैसे जब मैंने वो महाभारत देखी तो पांडवास, और जब द्रौपदी जी वनवास जा रहे थे तो द्रौपदी जी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उनको खाना अच्छा लग रहा था, पांडवास को कड़वा लग रहा था, द्रौपदी जी को कोई कांटे नहीं लग रहे थे। मतलब जब मैंने देखा, पांडवास को कांटे लग रहे थे, तो कृष्णा की ग्रेस से। ये मैं समझी नहीं तुम्हारा क्वेश्चन दीदी। वो मतलब जब हम गुरु कृपा, कृष्णा की कृपा, तो बहुत वो सारी चीजें हमें महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। मतलब जो हमारे पास चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि वो हमें। देखो, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है ना तब भी कुछ महसूस नहीं होता है। अच्छा। जब आप इग्नोरेंस में रहते हो तब भी कुछ महसूस नहीं होता है। और आपका जब गुरु की कृपा होगी ना, कोई भी टफ सिचुएशन भी आएगी, आप उस अवेयरनेस में, वो विजडम भी है, बट फिर भी क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस, आपको पता है कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। एवरी टाइम ये नहीं कि जो जो हो रहा है, जो आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो आप इग्नोरेंट भी हो सकते हो कि आपको महसूस नहीं हो रहा है। ग्रेट। गुरु सबसे पहले सर्जरी करते हैं ना हमारे आईज की, ही टेक्स द कैटरैक्ट्स आउट ऑफ आवर आईज सो दैट वी कैन फाइनली सी द ट्रूथ। जो हम बोलते हैं ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो उसका मतलब यही है ना कि माय आईज वर ब्लाइंडेड बाय कैटरैक्ट्स, तो आपने लेजर से वो कैटरैक्ट हटा दिया कि मुझे सब दिखने लग गया। तो जब जो इग्नोरेंट है वो maybe they're partying, having fun, they don't even know they are killing themselves because this human birth is so precious and rare, and it should be utilized only for one and one thing alone, which is going back to Godhead, है ना। तो उस ignorance से हटाते हैं। Any other questions? So Dipta, you want to do a small announcement for 19th March here? या मुझे एक फीडबैक भी लेना है कि जो हमने 2 मार्च में जब हम एसोसिएट हुए, उसमें जस्ट शॉर्ट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड what is the change you find inside you, or maybe After you have not the found continuous anything. chanting, you're saying, na? Yeah, yeah. You're referring to Gaur Purnima's chanting? God Purnimas, right, right. ठीक है, okay, okay. Anyone, Parul? Any change you find yourself, or change नहीं भी मिला है, हो सकता है। हाँ, जब हमने अभी ये वाला ब्रत भागवतम में जो हमने 24 से 26 तक में जो पढ़ा, वहां पर यज्ञ के बारे में भी था। तो मैं वहां पर ये कनेक्ट कर पा रही थी कि लॉर्ड जो है वो यज्ञ में उनको अर्घ दिया जा रहा है, वर्शिप करी जा रही है, तो वो अपीयर हो रहे हैं और इमीडिएटली वो डिसअपियर भी हो जा रहे हैं। उसके बाद वो जब जब फिर से अर्घ देते हैं, उसके बाद वो फिर अपीयर होते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। तो मतलब मैं ये कनेक्ट कर रही थी उस टाइम पर कि हमने जो चैंटिंग की, मतलब जैसे कि पासंग जी ने बताया कि उस टाइम पे कितना अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया चैंटिंग का, कि हमारी 3,21,000 समथिंग हमारे नाम जप हुए थे वहां पर। तब मतलब भगवान जब हम इतनी करते हैं तब वो हमें एक झलक देखते हैं। तो हमारा जो कलयुग का यज्ञ है
उस टाइम का यज्ञ जो द्वापर या सतयुग या त्रेता गए हैं उनमें यज्ञ की कुछ और परिभाषा थी, वो कुछ और तरीके से हवन यज्ञ करते थे। लेकिन कलयुग में जो यज्ञ समझ में आया है वो यही कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप, उससे प्यूरिफिकेशन भी होता है, सेंसेस भी प्योर होते हैं और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। और वही जब हम कांग्रीगेशन में होते हैं, जैसे कि अभी बोला कि हम इतनी चैंटिंग शायद अकेले नहीं कर पाते हैं, इतने नाम जप नहीं हो पाते कि 12 लोगों ने मिलकर एक साथ किया, तब कहीं जाकर के वो 3,21,000 हुए, तो तब वो हो एक सकता है क्षण के लिए भगवान ऐसे मुड़ के देखते हैं, एक क्षण, एक मिनी सेकेंड। हाँ, एक ब्लिंक उन्होंने ऐसे करके किया होगा। और वो हमें वो एक्सपीरियंस तो हम ना तो शेयर तो चलो बहुत दूर की बात है, वो फीलिंग्स भी हम कहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो ऐसी फीलिंग है, वो ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि वो आपके साथ ही रह सकता है। तो वहाँ चैंटिंग का जो रेजोनेंस था, जो वाइब्रेशन थी, वो बहुत अमेजिंग थी। हाँ, नींद बहुत आ रही थी बीच बीच में, लेकिन हाँ वो अवेयरनेस थी। जो हमारे को एक लास्ट में चल रहा था, वो अवेयरनेस था कि हम उस चैंटिंग की, उस ईश्वर की डिवोशन में, हम अवेयरनेस में वो चैंटिंग कर रहे थे। और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं अपने इस एसोसिएशन की और सुदीप्ता, जिसने इतना डेडिकेशन से किया है ना कि उसको वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सुपर ह्यूमन नहीं था वो, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो वी वर डिवाइन अवेक द पर्सन था एंटायर वो। डे। हाँ, इतना तभी बोला सुपर ह्यूमन। यस, इतना वॉइस, इतना लाउड, इतना मतलब क्या कहा जाए, इतना पावर वाइब्रेशनल के था वो, साथ। पावरफुल। मतलब मेरे अभी भी गूज बम्स हो गए हैं वो याद करके कि कैसे जिस तरीके से सुचिता कर रही थी कि हाथ भी उसके ऐसे ही थे, वो हाथ भी नीचे नहीं आए थे, वो चैंटिंग भी यही हो रही थी। और इट्स ब्यूटीफुल कि वो जो रात को हमने 12 बजे के बाद जो हमने वहां पे परिक्रमा घूमे के हैं। साथ, फ्लावर्स के साथ, और मुझे जस्ट लग रहा था, मैंने सुचिता को बोला, मैंने कहा यार मुझे एक टाइम के लिए लगा कि जब तू ऐसे ऐसे करके मतलब चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने महाप्रभु चल रहे हैं और पीछे वो नहीं, प्लीज तुरंत डोंट से दैट। डोंट डू दिस। डोंट गो देयर, डोंट हाँ, से दैट। मतलब बट हमें आगे मैं पता लगा मैं कि ये कभी बोलना कभी चाह रही हूँ कितने कि महाप्रभु। तो, जो भी हमने जैसा भी किया, सो वी हैव टू चेंज इनसाइड में, वो चेंज आना चाहिए। सो 19 मार्च अगेन वी आर बैंग ऑन दैट डे टू यस, do the not only the chanting but our KQ prayers. So there are many plans are there. Let's do healing so that we able to do एंड that. डोंट Yes, मिस इट Nidhi, you प्लीज। want to share? Huh? Sorry. मैं कही डोंट Sorry, मिस Papa. इट, Don't नहीं miss तो it. हाथ मलते रह जाओगे। जस्ट लाइट किडिंग। निकल जाएगी। हाँ। Nidhi, you want to share something? देखो, एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ईश्वर के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सुदीप्ता के लिए या पासंग के लिए एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं। तो ईश्वर के लिए एक्सप्रेशन देना आना चाहिए। वो देखो, इनसे सीखो, इंद्रदेव जी से और ब्रह्मा जी से, कि उन्होंने कितने एक्सप्रेशन दिए अपने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या निधि प्लीज। पहले मैं चैंटिंग एक माला ऐसे नहीं करती थी, अपना जैसे अपना हीलिंग ही करती थी, लेकिन जब से मैं वहां से आई हूँ तो एक माला चैंटिंग का स्टार्ट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल कि ये ग्रेटफुल टू स्टार्ट द हुआ है। मास्टर। हम्म। या निधि। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ये माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय एसोसिएशन, जब से मैं आई हूँ मेरे अंदर चैंटिंग ही चलती जा रही है। और वो चैंटिंग मुझे तब सुनाई देती है जब मैं अपने से कनेक्ट होती हूँ। और वहां पे तो शब्द नहीं है, इतना प्यार था अंदर से कि वो आंसुओं के फॉर्म में निकल आ रहा था और वो रुक नहीं रहे थे। मतलब इतना ऐसा, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उस महसूस की, जो मैंने महसूस किया कि मतलब जैसे कोई बहुत अनकंडीशनल लव दे रहा है आपको अंदर से। तो उसको मैं याद कर रही हूँ तो मुझे अभी भी लगता है वो, मतलब एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। तब मुझे समझ में आया मुझे अपने अंदर से जुड़ना है, अपने अंदर से बातें करनी है, कनेक्ट होना दैट इज है। इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली
Thank you, Nidhi. Thank you, Who's Nidhi. going next? Angishi, you want to share your experience? काफी अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस। खासकर मैं सुदीप्ता को बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से, जिस जोश के साथ, ऐसे पावर पैक्ड जो हमारी चैंटिंग थी उस दिन। आई थिंक सुदीप्ता और साथ में पारुल भी उसका जो साथ दे रहे थे इतने जोर जोर से, मतलब वो जो हो पाया, आई थिंक तुम लोगों की हिम्मत की वजह से ही हो पाया, और तुम्हारा जो जोश था उसके वजह से ही हो पाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एसोसिएशन एंड फॉर दिस एसोसिएशन का अपॉर्चुनिटी। ना यही काम है एक्चुअली में। यस, और एसोसिएशन वो, का यही काम है। Bang on 19 March we will यस, connect लुकिंग again. फॉरवर्ड, यस, लुकिंग फॉरवर्ड कि वो दोबारा से वही करने के लिए। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सुनता जिस तरह से एक एक बंदे को उठा उठा करके तुम लेकर के जा रहे थे, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सबको तुम एक साथ जो लेकर के चल रहे हो, तुम लोग सब मिल करके, मतलब इट्स रियली कमेंडेबल सर तो के। हमारा एक गोल डिफाइन है ना, तो उस यस, गोल में धीरे धीरे काम यस, करना पड़ेगा। यस, जो पीछे छूटे हुए जो बैक बेंचर्स हैं उनको भी सबको आगे लाने का जो काम चल रहा है ये सर के जो आगे के स्टूडेंट्स का, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 19 मार्च की दोबारा से वैसा ही माहौल बने और वैसे ही हम करें। वेरी थैंकफुल Every टू time it's ऑल going ऑफ to be यू। different, by the way. ग्रेट, ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ लतिका। दी मेरे को दो चीजें शेयर करनी है। वन थिंग, जो जब हम वो उसके कुंड के अराउंड चैंटिंग कर रहे थे, तो जैसे आप बोलते हो ना कि चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे एसोसिएट सबके साथ लेके चैंटिंग करते थे, और पूरा मतलब जो वो एनवायरनमेंट होता था पूरा वैसे जॉयफुल हो जाता था, तो बिल्कुल वैसी फील आ रही थी। सब एकदम खुशी से जा रहे थे, कोई ऐसे फूल कर रहा था, और ऊपर से ऊपर इतना मतलब इतना लाइट था वहां पे, वो चांद की रोशनी, मतलब इट वाज लाइक एक अलग ही प्लेजर था उसकी उसमें चैंटिंग में। ऊपर से ऐसा लग रहा था, मतलब इट वाज लाइक लाइक सारी सृष्टि हमारे साथ है, इट वाज लाइक दैट फीलिंग। देन सेकंड, जो ये रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ नेक्स्ट डे, आई वाज आप जैसे जब हम नवद्वीप ट्रिप में गए थे, तो आई यू मैं आपसे पूछती होती थी कि दी मैं अभी इससे इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अपनी चीजों को, कि मुझे क्या रिविलेशन होंगे, या मतलब जो आप कहते थे कि तुझे धीरे धीरे होंगे और तू रियलाइज करेगी, फिर मैं कहती थी कि नहीं बट मैं भूल जाऊंगी, तो यू वर ऑलवेज लाइक इंस्पायरिंग कि नहीं तुझे अपने आप रिविलेशन होगा। तो आई सडनली रियलाइज्ड कि जब कविता मैम का वहां फोन खो गया था, तो आपने मुझे कहा जा तू उनके साथ जा। तो हम पहले नित्यानंद प्रभु जी के मंदिर गए थे, एंड तब तो ठीक है चलो हम उसमें थे कि फटाफट फोन ढूंढना है, बट देन आई रियलाइज मैं उस मंदिर में तब तक गई नहीं थी, एंड आप अगर नहीं भेजते तो वो मेरा ट्रिप पूरा अधूरा रह जाता, और मैं उस मंदिर में तब तक गई नहीं थी। सो वेरी ग्रेटफुल। ये रियलाइजेशन जब हुआ, जब आप मुझे कहे थे ना उनकी आंखों में देखो, तब इट सडनली क्लिक टू मी। सो नो वर्ड्स। गुड। इवन कुलवंत जी तो क्या? पूरा उन्होंने राउंड लिया हमारे सामने, और वो इतनी खुश थी, मतलब वो उनके अंदर मतलब डिवाइन पावर कनेक्ट हो गई थी साथ में, और वो भी बहुत। सो अभी ये मेरे पूछने का मतलब ये था कि जस्ट टू रिचार्ज वी विल कनेक्ट अगेन ऑन 19th मार्च एंड अगेन वही थीम करेंगे, वही थीम होगा जो 2nd मार्च का था। एंड लेट्स सी और क्या करेंगे हीलिंग का। सेकेंड हाफ वी विल डू द हीलिंग एंड 2 hours chanting we will do that day. Let's see. Thank you so much. Pasang, you are on mute. Oh, I'm sorry.
I just wanted to say thank you everyone for your time today and thank you for your association. We are grateful to Sanatan Goswami ji and Shri Brihad Bhagavatamrit, and we are grateful to our spiritual masters Nalin Nirula ji and the lineage of the masters. So let's do the closing. Sipta, you want to do the closing? Sorry, you were saying something. Actually, मुझे सुनाई नहीं दिया. हाँ. I'm saying you यहाँ can पे ना do the closing, please. Okay. Closing, we can initially we did that opening. Just do I Pardon? surrender because this will go on Okay, yes, internet, yes, so I don't want to. Yeah. I surrender to the force of my karma and remain within the grace of the master with humility, healing myself and in the process healing others. We can repeat 3 times. I surrender to the Surrender force to of the my force of karma my and karma remain and within the remain grace of within the the grace master of the with master with humility, healing humility, myself healing and in the myself process and in healing the others. process I healing others. surrender to the force of Myself. my karma and remain within the grace of the master with humility, healing myself and in the process healing others. Extremely grateful. Extremely grateful, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Have a pleasant Hare day. Krishna. Thank Good you, night. everyone. All Thanks, of you. everyone. Hare Krishna. Bye-bye. Thank Thank you. you, everyone. Hare Bye. Krishna. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, everyone, and enjoy Hare everyone Hare on 19th. Krishna. And remember me, take me in your heart. Thank you.